بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا نعبد و یا نستعین۔ جی عمر صاحب، آج تاریخ ہے 20، کیونکہ 12 تو بج چکے ہیں، 12 سے اوپر ٹائم ہو گیا، تو 20 تاریخ ہے نومبر 2024۔ تو آج جو سارا دن جو سرگرمی ہوئی ہے، جو 3 افراد گئے ہیں عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے، علیمہ خان گئی ہیں، علی امین گنڈا پور گیا ہے، اور بیرسٹر گوہر۔ آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے کہ وہ مذاکرات کے لیے کہ 24 نومبر کی جو کال دی ہے خان صاحب نے، وہ ان سے مثلا کہ مذاکرات بھی تو وہ گورنمنٹ نے کرنے ہیں نا، تو وہ ان چیز کے لیے وہ گئے ہیں، تو آپ ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بہت شکریہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میں اس کے بارے میں یہی کہنا چاہوں گا، یہ جو آج بیرسٹر گوہر اور علی امین گنڈا پور اور علیمہ آپا گئے ہیں عمران خان سے قومی کی طرف سے پیغام لے کر گئے ہیں، وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں ایسے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ میں بات آپ کو 100% یہ بتا رہا ہوں، کیونکہ یہ حکومت کے ہتھ کنڈے ہیں، یہ کوئی مذاکرات نہیں کرنا چاہتے۔ یہ صرف نا یہ جو 24 تاریخ کو احتجاج کی جو کال دی ہوئی نا، اس کو کسی طریقے اس کو یہ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں بھی۔ یہ 24 تاریخ کی جو کال ہے نا احتجاج کی، وہ کامیاب نہ ہو سکے، حالانکہ پورے ملک کے اندر اس ٹائم آج 19 نومبر ہے، ٹھیک ہے، آج 20 ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، 20 نومبر ہو چکے ہیں، دن رہ گئے ہیں 4۔ اس حکومت کو پتہ اس بات کا بخوب علم ہو چکا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو خفیہ ادارے ہوتے ہیں جو رپورٹیں دیتے ہیں، رپورٹ وغیرہ دیتے ہیں، بھی عوام کا سمندر آ رہا ہے اسلام آباد اور چاروں طرف سے آ رہا ہے۔ تو یہ صرف آپ کو پتہ ہے پہلے یہ مذاکرات کے نام پہ نا ایک ڈرامہ بازی کرتے ہیں، یہ ایسے لالی پاپ دیتے ہیں بھی، ایسے ایسے لوگوں کو بات چیت کریں تاکہ یہ جو کال عمران خان کی آئی ہے، اگر یہ ایڈے مذاکرات کرنے والے ہوتے نا، تو مذاکرات کی ان کے کوئی مطلب کوئی نظر پتہ ہوتا بھی یہ کوئی فکر مند ہے مذاکرات کے بارے میں کرنا چاہتے ہیں حکومت، تو سب سے پہلے یہ عمران خان کے پاس جاتے ہیں، عمران خان سے خود ملاقات کرتے، اس کو رہا کرتے، کیونکہ کسی کیس کے اندر سزا تو ہے نہیں، کسی بھی عدالت سے اس کو جیسے صبح عمران خان صبح بیل ہے، صبح پتہ چل جائے گا حکومت کیڈی مذاکرات کرنا چاہتی ہے نہیں کرنا چاہتی۔ اگر یہ حکومت اگر مذاکرات کے موڈ میں ہوئے گی تو کل عمران خان بری ہو جائے گا، یہ 100% بات ہے، کیونکہ کل گل حسن اسلام آباد جو چیف جسٹس ہیں، گل حسن جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے، کل عمران خان کی بریت کی کل درخواست لگی ہوئی ہے، کل لگا ہوا ہے کل کیس، تو بلکہ آج 4 تاریخ ہو چکی ہے، تو پتہ چل جائے گا حکومت یہ کتنے کے مذاکرات کرنا چاہتی ہے۔ اگر یہ مذاکرات کرنے والے ہوتے اگر ہوئے تو دیکھ لینا عمران خان رہا ہو جائے گا، بعد بری ہو جائے گا، جیل سے باہر آ جائے گا ڈیالہ جیل سے۔ اگر وہ اس کی وہ نہیں ہوتا، وہ جیل سے باہر نہیں، اگر اس کی ضمانت نہیں ملتی، تو پھر آپ یہ سمجھ جائیں یہ حکومت ڈرامے کر رہی ہے، اور عمران خان جو ڈیالہ جیل کے اندر بیٹھے ہیں، وہ ان کے یہ جو بھی یہ پروپیگنڈے کر رہی ہے حکومت، جو بھی ڈرامے کر رہے ہیں وہ بخوب سمجھتا ہے، اور اس نے یہ بات عمران خان کی ہے بھی سیاسی جو پارٹیاں ہوتی ہیں وہ مذاکرات کے دروازے نہیں بند کرتی۔ اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ عمران خان کیا 3 مطالبے عمران خان نے رکھے ہیں، اس نے کہا جو میرا چوری کیا منڈیٹ ہے عوام کا 8 فروری والا، وہ واپس کیا جائے، اس کے بعد جو سیاسی قیدی ان لوگوں نے قید کیے ہوئے ان کو رہا کیا جائے، اور تیسرا ان لوگوں نے کہا عدلیہ کی آزادی، جو 26 آئینی ترمیم جو کی ہے ان لوگوں نے وہ بے کی، عدلیہ کی بحالی۔ یہ 3 مطالبے ہیں عمران خان کے، وہ مان لیں تو صبح اس نے کہا اگر احتجاج 24 کے احتجاج کی کال ہے، ہم خوشی کی 24 منا لیں گے، خوشیاں منا لیں گے، ہاں جی۔ تو لیکن یہ میری بات یاد رکھنا، یہ حکومت صرف چیک کرتی ہے مذاکرات کے نام کے اوپر یہ پارٹی کتنی آج کس حد تک جا رہی ہے، کس حد تک نہیں جا رہی، یہ صرف نا ٹیکہ لگا کے چیک کرتے ہیں پارٹی کو بھی عمران خان کی کال کیڈی کی مضبوط ہے۔ ان کو پتہ چلا ہے کھڑی کال مضبوط ہے احتجاج کی، اور عوام نکلنے کے لیے تیار ہے، تو یہ مذاکرات کی باتیں کر رہے ہیں، یہ مذاکرات کرنا نہیں چاہتے۔ یہ میری بات یاد رکھنا، یہ اندر کھاتے اپنا پورا پلان بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں نے کتنے ابھی دیکھا نہیں 4000 فورس ان لوگوں نے بٹھا لی ہے، ادھر بلا لی اسلام آباد۔ 22 تاریخ سے یہ لاک ڈاؤن اسلام آباد بالکل سیل کر رہے ہیں۔ 4000 بالکل 4000 45,000 ان لوگوں نے 45,000 شیل گیس ہوئے ہیں جو مارنے عوام کے اوپر۔
2-2.5 हज़ार इन लोगों ने वो गन्ने मंगवाई हैं बैलेट मारने वाली, और वो बैलेट जोड़े होंगे ने जोड़े मारने ने। जी जी, वो ज़ख्मी हुआ था जिसके पेड़ में लगा था, वो खून खून हो गया हुआ था, वो इन लोगों ने बुलाए हैं ये अपनी आवाम को मारने के लिए। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें, ये अपनी आवाम को ये मारने के लिए। देखिए क्या कर रहे हैं, 45 हज़ार शेल मंगवा रहे हैं। पहले के जो इतने पड़े हुए लहदा 2.5 हज़ार जो गन मंगवाई हैं वो चलाने के लिए, और रबड़ बुलेट मंगवा रहे हैं। रबड़ बुलेट पता नहीं कितने हज़ार मंगवाई है आवाम के ऊपर तशद्दुद करने के लिए, जुल्म करने के लिए। अपनी आवाम, नहती आवाम, पुरअमन एहतजाज जो हमारा आइन और कानून हक देता है उसको रोकने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, ये पैसा लगाया जा रहा है अपनी आवाम के ऊपर ये सब कुछ चलाने के लिए। लेकिन ये जो कुछ मर्जी कर लें, अवाम का समंदर 24 तारीख को आ रहा है। और ये मैं एक बात मैं कहना बार बार मैं हर वीडियो के अंदर ये बात करता हूँ, ये बांग्लादेश को भूल जाएंगे, इनको लग पता जाएगा ये अवाम की ताकत, असल हुक्मरानी अवाम की होती है, जमहूर अवाम होती है, ना कि कोई सियासतदान ते ना कोई अदारा। ताकत और जिसे कहते हैं रियासत अवाम होती है, अवाम के शहरी होते हैं जैसे हम लोग हैं, और जो अदारे होते हैं वो टूल होते हैं रियासत अवाम के। अवाम ने जो रखे होते हैं अपने मुल्क के लिए, अपनी हिफाजत के लिए, अगर वही उठ के अपनी अवाम के ऊपर अगर ऐसा कुछ कर लग पैणगे तो मुझे बताएं इस मुल्क के अंदर क्या है आइन कानून। इसलिए यही चीज़, आइन कानून की तो जंग है। अदलिया की बहाली 8 फरवरी को जो मैंडेट चोरी किया है इमरान खान का, 45 वाला को जेल के डाल दिया और 47 वाला को सीटों के ऊपर बिठा दिया। तो वो जो 45 वाले जो कागजात हैं वो मैं सुन रहा था इमरान रियाज का एक उसका व्लॉग सुन रहा सी, कहता वो इस्टेब्लिशमेंट के पास वो पड़े हुए हैं 45। तो कोई बात नहीं, इस्टेब्लिशमेंट के पास पड़े हुए कोई बात नहीं, इस्टेब्लिशमेंट भी ले आके देगी। इस्टेब्लिशमेंट के बाहर के मुल्क तो नहीं, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है ये, तो उनको अपने मुल्क का बिल्कुल ख्याल होना चाहिए। और हम इस चीज़ की बिल्कुल तवक्को करते हैं और उम्मीद करते हैं भी ये इस्टेब्लिशमेंट अपनी आवाम के साथ इनको खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि हर बंदा परेशान है। कोई नहीं भी निकलना चाहता एहतजाज के लिए वो भी निकलेगा, तो घर में नहीं बैठेगा। मेरी बात याद रखना, जितनी आवाम इस टाइम तंग है महंगाई और बेरोज़गारी की वजह से, तो अब ये बात बैठा लें। अवाम अब रुकने वाली नहीं है, क्योंकि अवाम के पास एहतजाज के अलावा और कोई हल नहीं है। तो जो इमरान खान ने जो कॉल दी है ये देख लें, अभी ये उससे 24 तारीख से पहले इमरान खान की बातें मान लें तो बेहतर होगा, वरना फिर ये इन जो जिस ओहदे के ऊपर बैठे हुए हैं वो भी जाएंगे, उनके ओहदे जाएगा। अवाम ने अपनी हाथ में ले लेना इक़्तिदार, जैसे बांग्लादेश ने लिया है। फिर ये क्या करेंगे बताएं, फिर क्या करेंगे? होना 24 तारीख के बाद यही होना है। 24 तारीख के बाद यही कुछ होना है। अवाम ने अपनी ताकत अपने मुल्क की भागदौड़ अपने हाथ में लेनी है। इनके लिए बेहतर है उससे पहले थोड़ा सा अक्ल के नाखून लें और इस बात को समझें। अवाम इस टाइम पहले वाली अवाम नहीं रही, ये बात याद रखना। हर किसी को पता है 24 तारीख को इंटरनेट बंद होएगा, सारा कुछ बंद होएगा। नहीं वो हर एमएनए बिल्कुल हर एमएनए ने बिल्कुल लेकर जाना है, और सभी जाएंगे, वो ना भी लेकर जाएंगे, वहाँ फिर भी जाएगी। ये आपको इसलिए भी नहीं जा रहा कि जी वो पीटीआई है, लेकिन वो लोग जा रहे हैं ये हालात की वजह से लोग जा रहे हैं, और क्या, कोई किसी पार्टी के पीछे भी नहीं अब जा बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। देखें इमरान खान की कॉल तो एक आ गई ना, वो तो एक मतलब एक बहाना मिल गया ना इमरान खान की कॉल है, लेकिन मकसद तो यही है ना भी अवाम ने इन हुक्मरानों से जान छुड़ानी है जो इस टाइम मुल्क के ऊपर मसलत है। मकसद तो अवाम का इनसे जान छुड़ाना है ना, ये नाहल और डाकुओं से जान छुड़ाना है इस मुल्क की, और मुल्क के अंदर कोई आइन और इंसाफ हो, कानून हो जो नज़र नहीं आता, उसकी बहाली के लिए अवाम निकलेगी और अपना पुरअमन एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराएगी। और जब तक मुतालबे नहीं माने जाएंगे अवाम उधर ही है। अवाम तो पहले भी घरों में भी बैठी है, परेशान है, अवाम उधर बैठी रहेगी। और अवाम इस दफ़ा जो जा रही है, और अवाम बिल्कुल खौफ के बुत तोड़ के जा रही है, इसमें कोई शक वाली बात है, और अवाम उधर रहेगी। अब वापस घरों को लौट के कोई भी नहीं आएगा, ये बात भी याद रखना।
अब कोई भी लौटेगा, जब तक ये मैंडेट वापस नहीं होगा इमरान खान का, इमरान खान रिहा नहीं होगा और अदलिया की बहाली नहीं होगी और जो सियासी कैदी हैं रिहा नहीं होंगे, तो ये अपने शहरी हैं, अपने मुल्क के लोग हैं। आप लोगों को वैसे ही ये 3 मुतालबे जो हक है उनका, वो उनका वापस होना चाहिए। तो यही बात थी। अली मीन गंडापुर गए हैं, ठीक है, और इमरान खान ने यही पैगाम दिया है भी मुज़ाकरात बिल्कुल करो, लेकिन उन्होंने कहा एहतजाज की कॉल नहीं रुकेगी। ये जो हुकूमत प्रोपोगंडा कर रही है ना जी, मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये बात पीछे हट गई है एहतजाज वाली, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज अलीमा अपा ने भी ये सब कुछ बताया है भी मुज़ाकरात सियासी पार्टी करती हैं, लेकिन जो कॉल है वो कायम है। अवाम, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ऑफिशियली ट्विटर पे इमरान खान का नहीं आएगा। इमरान खान खुद पैगाम अवाम, क्योंकि इमरान खान खुद का, इमरान खान खुद इस तरह हैंडल कर रहे हैं, खुद डायरेक्ट, किसी को उसने इस कॉल के अंदर नहीं डाला। जो भी बात करनी उसने कहा मेरे से हाथ डाला जेल आके करो, बस। उसके अलावा और किसी की नहीं बात, वो ना अवाम सुनेगी तो ना वो किसी की बात मानते हैं। ये सीधी सी बात है। तो ये देख लेना 24 तारीख, उससे पहले जो मुतालबे हैं इमरान खान जो जायज़ है, उसका हक है, वो माने तो 24 तारीख को अवाम खुशियाँ मना लेगी। अगर नहीं मानेंगे तो 24 तारीख को अवाम आपको वैसे ही इक़्तिदार आपका ख़त्म हो जाएगा 24 तारीख के बाद। ये बात मेरी याद रखना। जो अवाम का समंदर आ रहा है इस्लामाबाद, आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है क्यों अवाम परेशान है। तिजाज की बोलता है अवाम वैसे ही परेशान है। तो ये आप खुद आप लोगों ने अब फैसला करना है, जो उनका हक है जायज़, जो उसने मुतालबे जायज़ मुतालबे इमरान खान के, वो माने, इनसे जान छुड़ाएँ, मुल्क को आइन और कानून के अंदर लेकर आएँ, हर अदारा अपनी हदूद के अंदर जाए जो आइन के अंदर लिखी हुई है। जिसकी जितनी मुद्दत है उतनी अपनी मुद्दत अपनी पूरी करे, अपने बच्चों के अंदर खेले, अपनी पोतियों पोतों के अंदर जाए, दूसरे को हक दे जिसका हक है। सिविलियन को भी नौकरियां दें। इधर जो रिटायर होता है, जो कोई फौजी भरा रिटायर होता है, उसके लिए अगला अहदा तैयार हो जाता है। यही चीज़ है, यही मुल्क में यही ला कानूनियत है, यही नाइंसाफ़ी है जो पूरी कौम को नज़र आ रही है, पूरी कौम देख रही है। एक बल्कि आप आजकल तो ये भी ट्रेंड चला हुआ है जी, एक फौजी दूसरी एक जगह से काम कर रहा है, एक जगह ड्यूटी ऑलरेडी जॉब कर रहा है फ़ौज की, और दूसरी जगह पे भी वो कर रहा है, ठीक है, दो जगह से वो सैलरी ले रहा है एक बंदा फौजी। दूसरे सिविलियन क्या हमारे बच्चे और हमारे भाई ये किधर जाएं? आप बता दें। इसी चीज़ के लिए आज़ादी जो नारा लगाया इमरान खान, आज़ादी नारा, उन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं खुदा अल्लाह के सिवा, या करना बदवैया करना, अल्लाह तेरी बात करता तेरे से मदद माते हैं। उन्होंने कहा अल्लाह पाला दोनों आज़ाद पैदा किया है, कोई दोनों गुलाम बढ़ावेगा वो अपना खुदाई दावे वाला साहब है ना, कोई अपना डरा के धमका के खौफ डरा के अगर रहेगा, ठीक है। तो निकले 24 तारीख को, इंशाल्लाह हम भी निकलेंगे 24 तारीख को, 24 तारीख बल्कि पहले हम लोगों ने जाना है 22 को निकले, 24 को इन लोगों रास्ते टोटल रास्ते बंद कर देने हैं। 22 को इंशाल्लाह निकलेंगे, 24 को इंशाल्लाह इस्लामाबाद। अल्लाह आपका भला करे, मुलाकात होगी आपसे, ठीक है, डी चौक। तो अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर, चैनल मेरे को लाइक में सब्सक्राइब करें। और जितने भी ये जो ड्रामेबाजी कर रही है ना हुकूमत, भी मुज़ाकरात हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ड्रामे कर रहे हैं सिर्फ भी। कोई जैसे किसी तरह एहतजाज की कॉल स्लो हो जाए या बंद हो जाए, अल्लाह के ऐसा होना नहीं लगा। पीटीआई के कारकुनान पढ़े लिखे हो, बड़ा अकल शऊर रख देने, ठीक है ना। इमरान खान की कॉल तक पहले तक कोई चक्कर ही नहीं लगा एहतजाज किसी तक ये मुखर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर, चैनल मेरे को लाइक में सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलेंगे। इस्लामाबाद।